So, hello everyone. Today is day 29, and today we are going to learn about the past indefinite passive voice. Yes, because yesterday we learned about the present indefinite passive voice, and now today we are going to learn about the past indefinite passive voice. Then tomorrow we are going to learn about the future passive voice. Okay, so this is the second class of past indefinite passive voice. Okay, so let's start and before starting let me clear there are three main important things which is crucial to learn English, to speak English, to communicate in English. The first thing which is tense. We have to know everything about the tenses. Like there are 12 tenses, so you have to know about the 12 tenses. And the second thing which is modals. Yes, modals verb. There are 12 to 14 modals verb which we have to know about all the modal verbs in details. And the third thing which is passive voice, which we are learning now. Okay, there are 8 passive voice which we have to know, because if you are going to communicate, if you are going to give any speech, you have to use passive voice also. So because of this we are learning everything in details, okay, in 60 days of spoken English challenge. So today we are going to learn about the past indefinite passive voice. Okay, so past indefinite passive voice, if you are going to make past tense means like किया होगा. Okay, किया होगा. Yes, in past it happened. Past में किया होगा. Okay, so we use was and were to make the past indefinite passive voice. Okay, English पढ़ाई गई. English पढ़ाई गई. This is a past indefinite sentence. English पढ़ाई गई. So we will make the sentence of this English is taught. English is taught. English no is not. English was. We have to use was because we are making the past indefinite sentence. Okay, so this is about the past indefinite. In past indefinite we are going to use was and were and then third form. Okay, so this is the structure: object plus was, were plus verb की थर्ड फॉर्म V3 plus by plus subject. So this is a structure which we have to follow: object, then was, were, then verb की third form V3, then by and subject. So this is a structure which we have to follow. English पढ़ाई गई. English पढ़ाई गई मतलब कोई काम किया गया जो पास्ट में हो चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं वो चीज हो गई, वो किया गया, वो स्कूल गए, उसने घर बनाया, मतलब पास्ट में हो चुका है. सो इंग्लिश पढ़ाई गई. इंग्लिश वाज टॉट. इंग्लिश पढ़ाई गई. बेसिकली वी हैव टू मेक ई इन इस कैपिटल फॉर्म. इंग्लिश वाज टॉट. देन सेकंड सेंटेंस, इंग्लिश पढ़ाई गई. गाना क्लास में उन लोगों के द्वारा गाया गया. गाना क्लास में उनके द्वारा गाया गया. The song was sung. The song was sung by him. उन लोगों के द्वारा. By him in the class. The song was sung. गाना गाया गया उन लोगों के द्वारा क्लास में. क्लास में उन लोगों के द्वारा गाना गाया गया. The song was sung by him in the class. Okay, so all these sentences in past indefinite passive voice. Okay, past indefinite के ये सारे passive voice. Past indefinite का passive voice बनाने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल, हमें सबसे पहले object को यूज करना है, उसके बाद was and were को यूज करना है past indefinite के लिए, एंड उसके बाद हमें verb की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, then by and subject. Okay, लेटर लिखा गया. लेटर लिखा गया. A letter
was written, a letter was written, लेटर लिखा गया, किताब फाड़ी गई, book was torn, book was torn, किताबें फाड़ी गई, books were torn, किताबें फाड़ी गई. ओके. इंग्लिश वॉज लर्नड बाई अस, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी गई, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी गई, इंग्लिश वॉज लर्नड बाई अस, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी गई, इंग्लिश वॉज लर्नड बाई अस, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी गई. घर को हमारे द्वारा सजाया गया. यस. हाउस वॉज डेकोरेटेड बाई अस, हाउस वॉज डेकोरेटेड बाई अस, घर को हमारे द्वारा सजाया गया. ओके. सो ऑल दीज सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस फॉर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के ये सारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस. ओके. जिसमें हमें क्या करना है, सिंपल हमें वाज एंड वर यूज करना है. सब ऑब्जेक्ट वाज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हम हर जगह पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो हाउस होम वाज डेकोरेटेड, हाउस वाज डेकोरेटेड बाय अस, हमारे द्वारा घर को सजाया गया. एंड दिस बुक वाज सोल्ड बाय अस, ये किताब मेरे द्वारा बेची गई. This book was sold by us. And the birthday was celebrated. Birthday, जन्मदिन मनाया गया. The birthday was celebrated. जन्मदिन मनाया गया. The door was opened by her. उसके द्वारा दरवाजा खोला गया. उसके द्वारा मतलब किसी लड़की के द्वारा. The door was opened बाई हर, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया. मोबाइल स्क्रीन वॉज ब्रोकन बाई राज, राज के द्वारा मोबाइल का स्क्रीन तोड़ा गया या टूटा. सो द मोबाइल स्क्रीन वॉज ब्रोकन बाई राज. ओके. एंड वाई वॉज थीफ नॉट कॉट, चोर को क्यों नहीं पकड़ा गया. ठीक है. सो दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू कैन से, और WH वर्ड, क्यों नहीं पकड़ा गया. Why was thief not caught, चोर को क्यों नहीं पकड़ा गया. सो हम सबसे पहले अगर क्यों आया या कब आया तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं why, क्यों. देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. Why was thief not caught, CAUGHT, caught. ओके. Why was thief not caught, चोर को क्यों नहीं पकड़ा गया. एंड क्या चोर को पकड़ा गया. Was thief caught, was thief caught, ये हमारा इंट्रोगेटिव है. एंड दिस इज द WH वर्ड, क्यों नहीं पकड़ा गया. ओके. So we also make, if there is any WH word, we also make this sentence in interrogative. Okay. Yes. And how were you deceived by them, कैसे तुम्हें उन लोगों के द्वारा धोखा दिया गया. कैसे, how, कैसे, how हमने लगाया. How were you deceived by them, उन्हें उन लोगों के द्वारा तुम्हें कैसे धोखा दिया गया. And how were मैंगोज सोल्ड बाई हिम, उनके द्वारा कैसे आमों को बेचा गया, आम को कैसे बेचा गया उनके द्वारा. सो हाउ वर मैंगोज हाउ वर मैंगोज सोल्ड बाई हिम, उन लोगों के द्वारा मैंगोज को कैसे बेचा गया. सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस. सो दीज आर ऑल सेंटेंसेस इन affirmative, and this is the interrogative sentence and negative sentence. Like किताबों को नहीं बेचा गया, किताबों को नहीं बेचा गया. Books are not sold,
दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। बुक्स आर नॉट सोल्ड, किताबों को नहीं बेचा गया। सो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट के ये सारे पैसिव वॉइस है। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो क्लियर है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है और उसके बाद हम वाज एंड वर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो वाज एंड प्लूरल है तो वर, एंड उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। सो टेक ए लुक एंड दिस इज क्लियर आई थिंक। Yes. So now we learn about the past indefinite passive voice. Now we are going to start about the past continuous. Yes, passive voice of past continuous. पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंसेस कैसे बनता है? वो जा रहा था, यस जा रहा था। जा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम बनाते हैं, वो जा रहा था, वो लोग खेल रहे थे, वो खा रहा था। सो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बनाने के लिए अगर हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम पास्ट में भी वॉज और वर आईएनजी फॉर्म यूज करते थे। यहां पे हम यूज करेंगे वॉज प्लस वर प्लस बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग। ओके, वॉज वर एंड बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास रहेगी। ठीक है, सो जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जा रहा था। सो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर, लेट्स सी स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वॉज एंड वर, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, so this is the structure which we have to follow in past continuous. past continuous का अगर हमें passive voice बनाना है तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। so let's make some sentences. past continuous में sentences बनाते हैं। ठीक है, past continuous का sentences बनाते हैं। let's see past continuous, yes past continuous. so ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। was वर एंड being यूज करेंगे हम। एंड घर सजाया जा रहा था, दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। घर सजाया जा रहा था। ओके, सो हाउस was being यूज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के टाइम हमें बीइंग यूज करना है। हाउस वाज बीइंग डेकोरेटेड, घर को सजाया जा रहा था। हाउस वाज बीइंग डेकोरेटेड। नाउ अगर आपको सब्जेक्ट भी यूज करना है तो यहां पे यूज कर सकते हैं। हाउस वाज बीइंग डेकोरेटेड बाय अस, हमारे द्वारा सजाया जा रहा था। बाय हर, बाय देम। ओके, so this is the first sentence and the second sentence. Let's see the second sentence. दिवाली मनाई जा रही थी, दिवाली मनाई जा रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। दिवाली was being celebrated, दिवाली was being celebrated, दिवाली मनाई जा रही थी। यस, ईद was being celebrated, ईद मनाई जा रही थी। ईद was being celebrated. Okay, and fourth sentence, ईद was being celebrated, ईद मनाई जा रही थी। खाना नहीं खाया जा रहा था। यस, फूड was not being eaten, खाना नहीं खाया जा रहा था। फूड was not being eaten. सो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं सो हमें यूज करना है was, वर एंड प्लस being एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके,
वो उसे नहीं जाना जा रहा था, उसे नहीं जाना जा रहा था मतलब उसे कोई नहीं जान रहा था। he was not being known, नो का नॉन एंड 6 उसे नहीं जाना जा रहा था। he was not being he was not being known, उसे नहीं जाना जा रहा था। एंड मूवी नहीं देखी जा रही थी, ओके मूवी नहीं देखी जा रही थी, MOVIE, मूवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड, ओके मूवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड, मूवी नहीं देखी जा रही थी। सो हमारे पास सेंटेंसेस बन गए हैं 6, 3 अफर्मेटिव के सेंटेंसेस एंड निगेटिव कैसे बनाएंगे, जस्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज करेंगे, नॉट बीइंग, वॉज नॉट बीइंग। एंड देन सेवेंथ सेंटेंस हम बनाते हैं, क्या स्टोरी लिखी जा रही थी, क्या स्टोरी लिखी जा रही थी, अफर्मेटिव सेंटेंस, वॉज स्टोरी रिटन, स्टोरी was story being written, yes being written, was story being written, क्या स्टोरी लिखी जा रही थी। सो आप बनाओगे इंट्रोगेटिव, पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव, was story being written, yes। अगर हम अफर्मेटिव बनाएं, स्टोरी was being written, स्टोरी लिखी जा रही थी, was story being written, क्या स्टोरी लिखी जा रही थी, wasn't story being written, क्या स्टोरी नहीं लिखी जा रही थी, yes। So this is the interrogative sentence। and 8 why was shop not being opened, शॉप क्यों नहीं ओपन किए जा रहे थे, why was WH वर्ड के साथ, why was shop not being, why was shop not being opened, okay why was shop not being opened, शॉप क्यों नहीं खोले जा रहे थे, शॉप क्यों नहीं खोले जा रहे थे। why, मैं क्यों पीटा जा रहा था, मैं क्यों पीटा जा रहा था, why I was beaten, why I was being beaten by them, उन लोगों के द्वारा क्यों पीटा जा रहा था। एंड दिवाली was being celebrated by us, हमारे द्वारा दिवाली सेलिब्रेट की जा रही थी। सो इस तरह से हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाए, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में हम हर जगह सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और सब्जेक्ट को बाद में यूज कर रहे हैं। एंड पैसिव वॉइस में हम हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस वाज अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर के साथ बीइंग यूज कर रहे थे, ओके। सो दिस इज क्लियर अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, आई थिंक, ओके। हमने सारे सेंटेंसेस बनाए 3 एंड ये हमने बनाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक पास्ट परफेक्ट टेंस, यस। Take a look, then I am going to erase it. Okay, so we learn about the past continuous tense. Now we are going to start about the past perfect tense, okay. पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट, ओके। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस देखते हैं। जा चुका था, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास किस तरह से सेंटेंसेस होते हैं, जा चुका था, ओके। वो जा चुका था, वो लोग खेल चुके थे, वो सो चुका था, वो पढ़ चुके थे, जिसमें कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है।
सो पास्ट परफेक्ट में जा चुका था। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में हम यूज करते थे पास्ट परफेक्ट में हैड, यस हैड, यस पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते थे एक्टिव वॉइस में हैड, बट पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में वी आर गोइंग टू यूज हैड बीन। ओके, हैड प्लस हैड बीन एंड V3, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 plus by and subject. So this is a structure which we have to follow in past perfect tense. Okay, object and had been, verb की third form and by and subject. We have to use this structure and past perfect में जा चुका था। ठीक है, मेरा मोबाइल चुराया जा चुका था। ये एक हिंदी में सेंटेंस है कि मेरा मोबाइल चुराया जा चुका था। सो इसको हम पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? मेरा मोबाइल चुराया जा चुका था, इसको हम बनाएंगे माई मोबाइल हैड बीन stolen. My mobile had been stolen. ठीक है, मेरा मोबाइल चुराया जा चुका था। पास्ट परफेक्ट में मेरा मोबाइल चुराया जा चुका था, माई मोबाइल हैड बीन स्टोलन। हैड बीन हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ओके, माई मोबाइल हैड बीन स्टोलन। एंड द सेकेंड सेंटेंस, मूवी देखी जा चुकी थी, film had been watched. Film had been watched. मूवी देखी जा चुकी थी। And काम हमारे द्वारा किया जा चुका था। काम work had been done by me. by me, काम हमारे द्वारा किया जा चुका था। work had been done by me. ओके, लैपटॉप नहीं चुराया जा चुका था। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस 3 4 नेगेटिव सेंटेंस, लैपटॉप had not been stolen. लैपटॉप नहीं चुराया जा चुका था। एंड फिफ्थ सेंटेंस, लैपटॉप नहीं चुराया जा चुका था, इंग्लिश नहीं पढ़ी जा चुकी थी। इंग्लिश had not been taught. इंग्लिश नहीं पढ़ी जा चुकी थी। एंड मार्केट नहीं जाया जा चुका था। मार्केट had not been gone. मार्केट नहीं जाया जा चुका था, मार्केट had not been gone. Then seventh sentence, क्या घड़ी तुम्हारे द्वारा बेची जा चुकी थी? सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? had the watch been sold by you. Had the watch been sold by you. Had the watch been sold by you. क्या घड़ी तुम्हारे द्वारा बेची जा चुकी थी? क्या खाना बनाया जा चुका था? Had the food been cooked. क्या खाना बनाया जा चुका था? Had the food been cooked. क्या खाना बनाया जा चुका था? And
क्या वो लोग, क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे, क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे? had they played had they played been cricket, okay, had they been played cricket, क्या वो लोग क्रिकेट खेल चुके थे? been played cricket, okay, क्या वो क्रिकेट खेल चुके थे? had they been played cricket. So all these sentences are for past perfect tense. past perfect के पैसिव वॉइस ये सारे हैं, ठीक है, जिसमें से 3 हमने सेंटेंसेस बनाए हैं अफर्मेटिव के, एंड सेंटेंसेस बनाए हैं हमने निगेटिव के, एंड इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस बनाए हैं. ओके, सो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर अबाउट द पास्ट पैसिव वॉइस. पास्ट में हम 3 चीजों के पैसिव वॉइस बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट. सो तीनों के हमने देखे, पास्ट इंडेफिनिट के भी देखे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के, हमने सबके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाए हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू टेक the exercises, do more exercises, then you are going to know everything in details. Okay, because 3 or 4 to make just 3 or 4 sentences, we are not going to be more comfortable in this. We have to make lots of sentences, at least 15 to 20 sentences, then we are going to know more about this word. Okay, so thanks for today.